جو پریس کانفرنس کی جا رہی ہے یہ حج کے تعلق سے بہت ساری جو گائیڈ لائنس آئی ہوئی ہیں نئی 2026 حج کے لیے، وہ گائیڈ لائنس چونکہ حجاج کو جو عازمین حج ہے ان کو معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ اویئرنیس پیدا کیا جائے حجاج کے درمیان جو 2026 میں حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اکثر عازمین جو انڈیا سے سفر کرتے ہیں حج کے لیے، جو پرائیویٹ ٹور سے سفر حج کا ارادہ کرتے ہیں، یہ لوگ اکثر رمضان کے بعد شوال اور ذوالقعدہ میں اپنی اپنی بکنگز کراتے ہیں تاکہ جو ہے نا مطلب اپنے حج کے سفر کو آسان کر سکیں۔ مگر اس سال جو ہے سعودی گورنمنٹ اور انڈین گورنمنٹ، منسٹری آف مائنارٹی افیئرس اور منسٹری آف حج سعودی عربیہ کے کچھ نئے گائیڈ لائنس آئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سال ہر چیز وہ گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے جو ڈیڈ لائنس ہیں وہ ڈیڈ لائنس کو فالو کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں گزشتہ سال پورے ورلڈ کا تقریباً 6,30,000 کا کوٹا کٹ گیا تھا، جس میں سے تقریباً 45,000 کا جو ہے نا انڈیا کا کوٹا بھی کٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے صرف 10,000 حاجی پرائیویٹ سے سفر حج کر سکے تھے۔ تو وہ چیزوں کو لے کر اس سال گورنمنٹ آف انڈیا بہت اسٹرکٹ ہے اور سعودی گورنمنٹ بھی بہت اسٹرکٹ ہے، جو ڈیڈ لائنس دی گئی ہیں اس کو فالو کرنا ہے۔ اس میں سب سے اہم جو ڈیڈ لائنس ہیں اس کے اندر جو پرائیویٹ سے جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ 4 دسمبر کو ایک منسٹری آف مائنارٹی افیئرس حج سیل کی طرف سے سرکولر دیا گیا، جس کے اندر جو لوگ حج پرائیویٹ سے جانا چاہ رہے ہیں ان کو جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 15 جنوری تک آپ اپنے بکنگز کرا لیں تاکہ آپ کے سفر حج کو آسان بنایا جا سکے، اور سعودی گورنمنٹ کی جو ڈیڈ لائن ہے ان ڈیڈ لائنس کو فالو کیا جائے۔ اکثر حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان کے بعد جائیں گے، چونکہ حج کمیٹی کی جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ پرائیویٹ کے اندر جو لوگ بھی سفر حج کا ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم رمضان کے بعد جائیں گے، یا حج سے بالکل لاسٹ مومنٹ پہ پرائیویٹ کے حاجی جاتے ہیں۔ خاص کر کے میرے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ پرائیویٹ میں تو کبھی بھی جا سکتے ہیں اور اپنی بکنگ کرا سکتے ہیں، مگر اس سال ایسا نہیں ہے۔ اس سال بہت سارے قوانین چینج ہو گئے ہیں۔ اس سال جو بھی پرائیویٹ سے لوگ جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے جو ڈیڈ لائن گورنمنٹ آف انڈیا اور سعودی عرب کی طرف سے جو دی گئی ہے ان سے خواہش کی گئی ہے 15 جنوری تک اپنے جو ہے نا بکنگز کروا لیں تاکہ ان کی من پسند ہوٹل مل سکے، ان کی من پسند جو ہے نا مینا کا جو ہے نا اکاموڈیشن زونز وغیرہ کا الوکیشنز ہو سکے۔ اسی لیے کہ حاجی جب بک کراتے ہیں تو پرائیویٹ ٹور والے ان کے حساب سے اکاموڈیشن وغیرہ وہاں پر ارینج کرتے ہیں۔ انڈیا ایک ایسا واحد کنٹری ہے ساؤتھ ایشیا، خاص کر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں کے اکثر حاجی لاسٹ میں اٹھتے ہیں، مگر دوسرے کنٹریز جیسے جو ہے نا پاکستان، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، یہ دوسرے کنٹریز کے ٹور آپریٹر بھی اور حاجی بھی بہت پہلے سے اپنی بکنگ کرا کے اچھے لوکیشنز لے لیتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ اویئرنیس نہ رہنے کی وجہ سے ہمارے حاجی بالکل لاسٹ میں آتے ہیں۔ اب یہ سال سے پوری پالیسی چینج ہو گئی ہے، کم سے کم آپ کو جو ہے نا حج پہ جانا ہے تو 5 مہینے پہلے اپنی بکنگ کرانا ہے۔ تو جس طریقے سے مئی کے اندر جو ہے نا یہ سال انشاءاللہ حج ہوگا، تو جو گورنمنٹ کی طرف سے جو سرکولرز آئے ہوئے ہیں اس کے اندر 15 جنوری کی خواہش کی گئی ہے 15 جنوری تک آپ اپنے بکنگز کرا لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو گائیڈ لائنس آئی ہوئی ہیں ہیلتھ ایشوز کو لے کر، وہ ہیلتھ ایشوز بہت اہم ہیں۔ اس سال سعودی گورنمنٹ ہیلتھ ایشوز کو لے کر بہت پریکاشنز لے رہی ہے۔ جو میجر ڈیزیز ہیں وہ پیسنجر یہ سال سفر نہیں کر سکتے، اس کے اندر خاص طور سے جن کو ہارٹ ڈیزیز ہے، ڈائلسس کے پیشنٹس ہیں، جن کو کینسر ہے، جن کو برین کی کوئی بیماری ہے، جن کو لنگس کا کوئی پرابلم ہے، اور جو ہے نا پریگننٹ لیڈیز جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا یہ سال سفر حج سے محروم رہیں گے، وہ لوگ یہ سال سفر نہیں کر سکیں گے۔ اگر کسی وجہ سے ان کا ویزا لگ بھی گیا تو سعودی گورنمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے اور وہ لوگ اپنے سرکولرز میں اور گائیڈ لائنس کے اندر یہ کلیئر کر دیے کہ جب حاجی جدہ پہنچیں گے ان کے میڈیکل چیک اپس کے اندر اگر کسی قسم کے کوئی ڈیزیز رہیں گے تو ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، اور اس کے جو اخراجات رہیں گے حاجی سے جو ہے نا چارج کیا جائے گا، ٹکٹس وغیرہ کے بھی۔ جیسے کہ صاحب سعودی حکومت میں بتایا گیا تھا کہ چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے اس سال جو ہے دعوت کر دیے، تو یہ کتنی بات سچ ہے اس کے بارے میں؟ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ جب سے پینڈیمک ہوا اس کے جب سے جو ہے نا یہ بینڈ لگا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے نا 0 سے لے کے 12 سال کی عمر کے بچے بھی جو ہے نا سفر حج سے محروم رہیں گے، وہ لوگ بھی نہیں کر سکیں گے سفر۔ کئی لوگ جیسے حج کمیٹی وغیرہ میں درخواست دیے یا پرائیویٹ میں بھی جو ہے نا جانے کے لیے جن کے پاس بچوں کو مطلب سنبھالنے کے لیے کوئی نہ رہتے تو وہ لوگ بھی بچوں کو لے کے جانے کا پلان کرتے ہیں، مگر وہ لوگ بھی جو ہے نا یہ سال سفر نہیں کر سکیں گے۔ 12 سال سے کم عمر کے بچے جو ہے نا وہ لوگ بھی سفر نہیں کر سکیں گے۔ یہ کچھ ضروری چیزیں ہیں جو حاجیوں کے اندر اویئرنیس دینا ہے کہ بھائی جو ڈیڈ لائنس ہیں اس کو فالو کرنا ہے، اگر وہ ڈیڈ لائنس کے اگر ہو گیا اور ڈیڈ لائن کے بعد اگر کوئی سفر حج کا ارادہ کر سکے تو نہیں کر سکیں گے وہ لوگ۔ تو ایک ضروری چیز ہے خاص طور سے کہ حاجیوں کے اندر
ये तारीखों को लेकर जो है ना अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अक्सर हाजी जो है ना मतलब जैसा मैं अभी पहले ही बोला कि जो है ना जिलकादा और जिलहज्जा के अंदर जिलकादा और शव्वाल और जिलकादा के अंदर अपनी प्लानिंग करते हैं, मगर इस साल सब लोग जो है ना सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, बल्कि 20 मार्च आखिरी तारीख है वीजा लगने की। जो सऊदी अरब की जो वजारत हज की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 20 मार्च यानी 1 शव्वाल है वो आखिरी तारीख है वीजा लगने की। और 8 फरवरी जो है वो 8 फरवरी हाजियों का पूरा डाटा सऊदी अरब को ट्रांसफर करने की लास्ट डेट है। 8 फरवरी के बाद अगर कोई जो है ना मतलब हाजी का डाटा या फिर जो है ना मतलब हाजी का जो है ना वीजा वगैरह की एप्लीकेशन देना है तो 8 फरवरी के बाद वो भी नहीं दे सकते। तो 15 जनवरी, 8 फरवरी और 20 मार्च जो है ना ये डेडलाइंस हैं। और जैसा प्राइवेट के लिए लास्ट ईयर बताया गया था, पेमेंट्स के बहुत सारे इश्यूज हुए जिसकी वजह से कोटा कट गया करा था, तो ये साल 15 दिसंबर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की डेडलाइन थी उनको अपने अपने फंड्स ट्रांसफर करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरे जितने जो है ना इंडिया से 26 लीड एनजीओस हैं उन लोगों ने अपना अपना पैसा सऊदी गवर्नमेंट को अपने अपने वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर दिए और अपने अपने जोन्स वगैरह सिक्योर कर लिए और उनके होटल्स वगैरह भी सिक्योर कर लिए। बहुत सारे हाजियों के जहन में ये बात है कि गुज़श्ता साल जैसे प्रॉब्लम हुई थी, ये साल भी क्या प्राइवेट के अंदर वो प्रॉब्लम होगी क्या ये साल भी कोटा कट जाएगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, खास करके हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है माइनॉरिटी अफेयर्स एक्सेल हर दिन हमारे ऊपर नजर रखी हुई है कि क्या चल रहा है, डेडलाइंस को टूर ऑपरेटर्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन डेडलाइंस को लेकर हर अल्टरनेट डे जितने भी 26 लीड एनजीओस हैं उनकी और माइनॉरिटी अफेयर्स की जो है ना मीटिंग जो है ना हसल की मीटिंग हो रही है, उनको अपडेट देना पड़ रहा है। बाज़ाब्ता सिस्टम बनाया गया है, उनकी मीटिंग्स हो रहे हैं कि भाई इतना पेमेंट चलेगा, इतना पेमेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिसंबर तक सारे जितने भी 26 लीड एनजीओस हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अपना अपना पेमेंट ट्रांसफर कर चुके हैं और अपने अपने जोन्स वगैरह जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है, जिसका जैसा क्लाइंटल है उसके हिसाब से अपने अपने जोन्स वगैरह सिक्योर कर चुके हैं। तो ये चीजें थी, हाजियों को जो है ना ये बातें पहुंचाना है, बहुत अहम है। तो हाजियों से मेरी जो है ना दरख्वास्त है कि अपनी अपनी जो है ना नशिस्तें फौरी तौर पर बुक करा लें और अपने हज को सिक्योर कर लें, क्योंकि हज क्या है, हमारे जो 5 अरकान हैं इस्लाम के, उसके अंदर से एक अहम रुकन है हज पर। इसके ऊपर फर्ज है जो लोग जाना चाह रहे हैं वो लोग 5-15 जनवरी तक अपने अपने सिटी जो है ना जो भी रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर है उनके पास अपनी अपनी नशिस्तें बुक करा लें। बहुत सारे लोग कम पैसों के लिए और नॉन रजिस्टर्ड टूर वाले जो है ना बहुत सारा जो है ना मतलब लालच देकर जो है ना हाजियों को बुलाते हैं। और बहुत सारे लोग आप बार बार देखते हैं न्यूज़ों के अंदर आता है हज और उम्रे के नाम के ऊपर जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना हाजियों को जो है ना चीट करते हैं। तो हाजियों से ये भी गुजारिश है कि जो है ना लोग जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की साइट के ऊपर जाएं, वहां पर एक बाज़ाब्ता एक लिस्ट है, वो लिस्ट देखेंगे कौन टूर ऑपरेटर रजिस्टर्ड है, उनका लाइसेंस देखें, उसके बाद उनके पास बुकिंग कराएं। अदरवाइज आप जो है ना फिर जो है ना मतलब हज से महरूम हो सकते हैं। 2-3 चीजें, एक तो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर को देखें, दूसरा 15 जनवरी तक अपनी अपनी बुकिंग करा लें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों का सफर जो है ना मकबूल और मसरूर रहेगा इंशाल्लाह। इसके आगे जब क्या आएंगे सर? लिमिट्स भी बताएं इसमें गाइडलाइंस जी, एज लिमिट के ताल्लुक से क्या गाइडलाइंस है? एज लिमिट्स के ताल्लुक से जो है ना जो बच्चे हैं उनके लिए 0 से जो है ना 12 साल पैदा होने से लेके 12 साल तक की उम्र के बच्चे ले जा सकते हैं। एल्डर्स के लिए कोई एज अभी ये साल नहीं है, मगर जैसा सुनने में आ रहा है कि जो है ना अभी ये साल हमारे पास भी जैसा रिस्ट्रिक्शन है, जो लोग भी 65 साल के हैं उनके साथ एक आदमी उनका जो है ना मतलब कोई ना कोई उनकी फैमिली का आदमी जाना जरूरी है। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि जो है ना गुज़श्ता साल के अंदर ये भी जो है ना एज लिमिट लगा दी जाए कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो है ना हज ना कर सके। असल में वहाँ गर्मी की शिद्दत बहुत है और ज़ईफ लोग और जो बीमार लोग हैं वहाँ जाकर परेशान हो जा रहे हैं और उनकी वजह से क्या हो रहा है, पूरी फैमिली भी परेशान हो जा रही है और पूरे का पूरा ग्रुप परेशान हो जा रहा है। इस वजह से ये रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। सब काफी जैसे कि ट्रैवल्स वाले जो है आजकल ऑफर्स दबा के चल रहे हैं, जैसे पैकेजेस में ये टूर एंड ट्रैवल जो आजकल हद से ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इन लोगों के ऊपर कोई एक एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? जैसे हाजियों को वहां पर जाने के बाद बहुत सी दिक्कतें और बहुत सी परेशानियां हो रही है। जैसे ट्रैवल्स में ऑफर दे रहे हैं, कोई 55, कोई 70, कोई डिस्काउंट में जो है। देखिए उम्रे के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उम्रे का काम हर आदमी क्या है मालूम है, गली गली में हज उम्रे का जो ना बोर्ड लगा के कर रहा हूँ, मगर हज का काम ऐसा नहीं है। हज का काम के लिए क्या है मालूम है, एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। हज के जो है ना बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एप्लीकेशंस मंगाती है, उनका एक क्राइटेरिया है, जो लोग वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उन्हीं को एलिजिबल किया जाता है और उन्हीं को कोटा दिया जाता है। उसमें भी कई कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 2, कैटेगरी 1, स्टार, इस तरीके की कैटेगरीज हैं, तो जिसकी जितनी काबिलियत है उनको उस तरीके से दिया जाता है। तो जो लोग कम की चक्कर में जाके परेशान हो जाते हैं,
सस्ता और अच्छा एक जगह जमा नहीं हो सकता। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसका मकसद ये है कि हाजियों के अंदर अवेयरनेस लेके आना। जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से जो गाइडलाइंस और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं, 15 जनवरी प्राइवेट से जाने वाले टूर ऑपरेटर्स के लिए आखिरी तारीख रहेगी हज 2026 के लिए। जो लोग हज 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग 15 जनवरी 2026 तक अपनी अपनी प्राइवेट रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स के पास अपनी अपनी बुकिंग करा लें। ये एक अहम चीज़ है जो हाजियों को, जो आज़मीन ये साल हज का इरादा करे हुए हैं, उनके तक जो है ना ये अवेयरनेस के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसी के साथ साथ हेल्थ इश्यूज़ को भी लेकर जो है ना जो सऊदी गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस आए हुए हैं वो भी बहुत अहम हैं। जो लोग मेजर डिसीज़ से जो है ना मुब्तला हैं वो लोग भी ये साल सफ़र हज से महरूम रहेंगे। ख़ास करके जिनको हार्ट और जो है ना डायलिसिस है और लंग्स का प्रॉब्लम है या कैंसर या फिर जो है ना मतलब टीबी वगैरह है, ये ऐसे पेशेंट्स भी जो है ना ये साल सफ़र हज नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो लोग भी जो है ना सफ़र हज पर नहीं जा सकेंगे। और साथ ही साथ जो 12 साल के अंदर के बच्चे हैं वो लोग भी सफ़र हज नहीं कर सकेंगे ये साल। तो एक अहम चीज़ है, चूँकि प्राइवेट से जाने वाले जो हाजी होते हैं वो अक्सर शव्वाल और ज़िलक़ादा में अपनी अपनी बुकिंग कराते हैं। तो प्राइवेट से जाने वाले हाजियों से दरख्वास्त है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी सर्कुलर दिया गया है 4 दिसंबर को, कि उसके अंदर भी ये जो है ना डेडलाइंस बताई गई हैं कि 15 जनवरी से पहले पहले अपने अपने जो है ना रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर के पास अपने अपने बुकिंग्स करा लें। अदरवाइज़ आप ये साल 2026 के हज पे जाने से महरूम हो जाएंगे। तो तमाम हाजियों से जो प्राइवेट से जाना चाह रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो लोग 15 जनवरी तक अपने अपने सीट्स रिजर्व करवा लें, ताकि आगे की जो कार्रवाई है वो आसानी से प्राइवेट टूर्स कर सकें। 3 जो है ना डेडलाइंस हैं, जिसके अंदर जो है ना फर्स्ट जो डेडलाइन है बुकिंग कराने की 15 जनवरी है। 8 फरवरी तक जो प्राइवेट से जाने वाले हाजी इनका पूरा डाटा सऊदी गवर्नमेंट को भेजना है, और 20 मार्च यानी 1 शव्वाल वो वीज़ा लगने की आखिरी तारीख रहेगी। 1 शव्वाल के बाद यानी रमज़ान की ईद के बाद कोई वीज़ा, हज का वीज़ा इशू नहीं होगा। तो तमाम जो है ना आज़मीन से दरख्वास्त है कि वो लोग अपने अपने रिजर्वेशन फौरी तौर पर करा लें और अपनी अपनी नशिस्तों को महफूज कर लें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।